Hi, good morning, everyone. Uh, can good morning, Pooja and Ujjwal. Can you confirm if I am audible and visible? Good morning, Yes, sir. sir. Yes, sir. Audible. Okay, great. So, we're gonna begin with a new chapter today, which is chapter one. But before that, I wanted to confirm whether you have watched the videos which I suggested you for the quants as well as the VRM portions. No, sir. I haven't watched the video, but will watch it today. By today. Okay. What about the for even for probability distributions? You did not watch the video, right? I saw the video of probability distribution, but not yours. Okay. ठीक है. I'm gonna explain things. वैसा नहीं है कि कुछ समझ नहीं आएगा. I'm gonna explain. But it's preferable कि तुम लोग एक बार videos भी देख लो. You should watch the videos because उसमें मतलब matrix calculation. If you are interested in watching the matrix calculation, how the portfolio variance and stuffs are coming, so it's suggested कि videos देखो उससे idea मिलेगा. Yes, the portfolio variance वाला ही पार्ट बहुत कंफ्यूजिंग था उसमें. मैंने ट्राई किया था अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर्स का मैंने देखा है, बट वो पोर्टफोलियो वेरिएंस ही कंफ्यूजिंग है उसमें. ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. लेट्स सी क्या इश्यूज आते हैं क्या नहीं. एंड या so I'm going to share my screen quickly and show you the math as well. So we are going to follow Schweizer for this chapter. For the next three chapters we are going to follow Schweizer notes. Chapter 4 में मैंने GARP material से कराया था, but अब Schweizer notes is enough. Okay, so let me quickly open notes up. Yeah. So the first chapter is measures of financial risk in VRM. अब measures of financial risk से क्या सब what are we understanding by the term measures of financial risk? Pooja, Ujjwal. Like we have financial risk, उसका क्या क्या measures होते हैं, कैसे कैसे measure कर सकते हैं, वो सब variables या जो भी measures होते हैं वो सब के बारे में डिस्कस किया गया. जैसे VAR, value at risk. Value at risk has been introduced in this chapter. Types of VAR will be introduced in the next chapter. Types of methods of calculating VAR will be introduced in the next chapter. And expected shortfall introduced, and why expected shortfall is better than VAR has been stated in here. So एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर्स सारे पोर्शंस एक्सप्लोर करेंगे. But before that, before getting into VAR, expected shortfall, value at risk, expected shortfall, and coherent risk measures, like risk measures के क्या क्या properties होने चाहिए, what should be the properties of a good risk measure, वो discuss होगा. उससे पहले there's a small discussion on the distributions, which is normal distribution and a mean variance portfolio scheme. ये जो this mean variance portfolio thing is also discussed in one of the other subjects. I think it's in the book 2, sorry, book 3 or book 1, as far as I remember. So उसमें भी discussed है, but इसमें भी उसका touch upon है. So we are gonna discuss that as well, and then move to VAR, expected shortfall and stuff. Okay. So this is how the chapter has been distributed. अब एक बार scroll through कर लेते हैं. Let's scroll through the chapter. So for initially it has been the mean variance framework has been discussed. We'll discuss what mean is, what variance is, and portfolio mean variance कैसे निकालते हैं. Normal distribution का क्या, what role does normal distribution play in mean variance framework, and what is an efficient frontier and a market portfolio. How can we compare a portfolio of market portfolio plus risk-free security, and how does the return and return risk profile looks like for these. ये discuss होगा. Then we'll move to limitations of mean variance framework की उसका assumptions ही उसका limitations होता है, so we'll discuss those.
Then we'll move to standard normal distribution क्या होता है, how can we move from normal distribution to standard normal distribution, and then उसके बाद we'll move to the actual measures of risk, which is VAR. Even the standard deviation is a measure of financial risk, but the more advanced measure is VAR, expected shortfall. तो वो भी डिस्कस करेंगे, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या इशू है वो भी डिस्कस करेंगे अपने. So this is how the chapter is going to move forward. Okay, so let's start from the beginning. Now, to understand this chapter, I do have few questions from you. Whether you understand these terms or not. Do you understand what a portfolio mean? What a portfolio is? Anybody? What is a portfolio? पूजा, उज्जवल, कृष्णा, पोर्टफोलियो क्या होता है एक? Sir, portfolio is like in stock market terms, it's an amount which has been invested or नॉट पर्टिकुलरली उज्जवल, वो तो इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया. yes, sir. So portfolio is a set of securities that you hold, right? Suppose मेरे पोर्टफोलियो में आई हैव टाटा, आई हैव रिलायंस, आई हैव HDFC बैंक, ये 3 स्टॉक है. तो मेरा पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 3 स्टॉक्स, विच इज रिलायंस, टाटा एंड HDFC. उज्जवल का पोर्टफोलियो में इन्फोसिस है, HCL है. सपोज इन्फोसिस और HCL है, तो उज्जवल का पोर्टफोलियो ओनली कंटेन्स HCL एंड इन्फोसिस. सो पोर्टफोलियो इज नथिंग बट अ set of securities that you hold, right? Am I making sense? पोर्टफोलियो बोलते हैं ना उसको. तो मतलब मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो में ये डेरिवेटिव्स है. आई एम होल्डिंग दीज डेरिवेटिव्स, आई हैव सच सो एंड सो स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो. अब मूवीज का होता है, वी हैव, Yes, sir. यू मस्ट हैव हर्ड, लाइक एक्टर्स का भी पोर्टफोलियो बनता है, जो वो लोग का मूवीज क्या क्या काम किया है, वो लोग का फोटो सब रहता है उस पोर्टफोलियो में. सो पोर्टफोलियो हो गया कि तुम्हारे अंडर तुम्हारे सिक्योरिटीज क्या क्या है, क्या क्या सामान है, क्या क्या चीज है. सो पोर्टफोलियो इज समथिंग which is can be called as a set of securities that you hold in here. So पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक ही स्टॉक होल्ड करते हैं. अगर हम लोग एक ही स्टॉक होल्ड करते हैं तो हम लोग का पोर्टफोलियो में एक ही स्टॉक है. अगर 2 करते हैं तो 2, 30 करते हैं तो 30. तो ऐसे ही है. So this is what portfolio means. Now, do you know what the meaning of mean, variance, standard deviation and covariance means? ये standard statistical measures है, जिसका आइडिया होना बहुत जरूरी है to understand this chapter. तुम्हारा कौन सा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है ना? No, sir, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. कॉन्ट्स में इसलिए मैंने कहा था कि वीडियोस देख लेना स्टार्टिंग का. ये स्टैटिस्टिकल मेजर्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब डिस्कस्ड है. एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड and there are videos for it. So if you would have come watching those videos, it would have been easier for me to make you understand this chapter. Anyways, so mean, variance, standard deviation, covariance, any idea, कुछ भी समझ में आ रहा है? गिव इट अ शॉट. मतलब गलत होगा मेरे को, आई डोंट केयर. गलत होगा. नो वन जजिंग. गिव इट अ शॉट. नाम से कुछ समझ आ Mean रहा हो equal तो. to summation. सॉरी, Mean equal to summation. नो पूजा, नॉट पर्टिकुलरली राइट. एवरेज पता है एवरेज क्या होता है? Yes, sir. सो मीन एवरेज ही हो गया. मेरा पोर्टफोलियो का मीन रिटर्न क्या है, एवरेज रिटर्न क्या है? मेरा एक स्टॉक है, मतलब 2 स्टॉक होल्ड करो, इक्वल अमाउंट है, 100 रुपए इन्वेस्टेड है, ठीक है.
तो एक रिटर्न दिया 10%, एक रिटर्न दिया 5%, तो मेरा एवरेज रिटर्न क्या हो गया? 7.5. 7.5. पूजा, डू यू एग्री? Yes, sir. सो दैट इज व्हाट मीन रिटर्न इज. मीन मतलब एवरेज निकालना. अब अगर यही मैं बोलूं कि मेरा एक स्टॉक में 60% इन्वेस्टेड है, एक स्टॉक में 40% इन्वेस्टेड था, तो वो 7.5 ही रहेगा. सपोज 10 का 60% है, 10% रिटर्न का, एंड 5% का 40% है इन्वेस्टेड. सो मीन 8% हो इज, जाएगा. हाँ, सो मीन इज समथिंग वेटेड एवरेज. इसको मैं कैलकुलेशन, आई विल शो द कैलकुलेशन एज वेल. what I'm suggesting is, Pooja, suppose we have stocks in here, we have weights in here, we have returns in here. So stock A, stock B. Stock A 0.6, 10%, 0.4, 5%. So मीन रिटर्न निकालने के लिए हम लोग हमेशा वेट इंटू आर करते हैं, रिटर्न करते हैं. सो वेट इंटू रिटर्न, 0.6 इंटू 10 इज 6%, 0.4 इंटू 5 इज 2%, तो टोटल 8% आया. So this is mean return. Okay. Now what is variance? ये बताओ. Difference between the expected and the actual. हाँ, you are correct, Ujjwal. It is the difference between expected and actual. But variance calculate करते हैं तब हम लोग को actual पता नहीं होते. We don't know the actual, right? Yeah, yes, sir. Yeah. So variance is something that is calculated as distance from mean. मतलब कितना फैला हुआ है. फैला हुआ, मतलब डिस्पर्स्ड है. अब एक स्टॉक मतलब एक पोर्टफोलियो है. सपोज ये एक पोर्टफोलियो था, 10 और 5% था. ठीक है, 60 और 40% इन्वेस्टेड है इसमें. दिस वन मोर पोर्टफोलियो, दिस इज पोर्टफोलियो वन. दिस वन मोर पोर्टफोलियो, उसमें भी सेम स्टॉक्स है. ठीक है, सेम स्टॉक है, दोनों में इन्वेस्ट किया है. सपोज ए इज रिलायंस, बी इज टाटा, दोनों रिलायंस और टाटा में इन्वेस्टेड है. बट वेट्स और रिटर्न्स अलग अलग है इसमें. लेट मी मेक समथिंग जिससे 8% ही आए. लेट्स से स्टॉक्स भी अलग अलग है. डोंट कीप द स्टॉक सेम, वरना देयर विल बी क्वेश्चन कि स्टॉक सेम है तो रिटर्न सेम क्यों नहीं है. सो आई एम चेंजिंग द स्टॉक्स एज वेल फॉर नाउ. ओके, सो स्टॉक्स अलग अलग है. अब 8% मेरे को लाना है. सो आई कीप इट सिंपल. हाँ, 0.5 करता हूँ, एंड देन रिटर्न्स का डिस्पर्सल ज्यादा दे दूंगा. 8% कैसे आएगा? 20 अगर एक में लूँ तो दूसरा में कितना लेना पड़ेगा? अगर इसमें मैं 20% ले लूँ तो नहीं, 20% नहीं ले सकता. इसमें 14% ले लेता हूँ और इसमें 2% ले लेता हूँ. ठीक है. सो 718% आया. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर? मीन इज सेम. मीन रिटर्न इज सेम फॉर बोथ द पोर्टफोलियोज. Yes, sir. बट इफ यू सी द रिटर्न्स, यहाँ पे रिटर्न 10%, 5%, यहाँ पे 14%, 2% है. कौन सा ज्यादा फैला है? विच इज मोर डिस्पर्स्ड? 14% वाला. पोर्टफोलियो 2. Yes, sir. 8% से 6 ऊपर है, 6 नीचे है. बट इसमें खाली 8% से 2 ऊपर है, 3 नीचे है ना? तो variance will be greater for portfolio 2 instead of portfolio 1. Variance is something which is calculated as sum of squares from distance of mean. Variance is also called as second moment. Variance is also called as
सेकेंड मोमेंट, ये सब तुम लोग क्वांट्स में पढ़ेगा. दिस विल बी टॉट इन क्वांट्स. सो whenever you calculate variance, it is distance from mean. अब वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करता है? टू कैलकुलेट वेरिएंस, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोला जाता है. इसका नोटेशन यूजुअली सिग्मा स्क्वायर होता है. इट इज सिग्मा स्क्वायर. सिग्मा इज रिटन लाइक दिस एंड देन स्क्वायर. स्टैंडर्ड डिविएशन इसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिग्मा. बट स्टैंडर्ड डिविएशन में भी आया नहीं है, वी आर इनटू वेरिएंस येट. तो वेरिएंस इज समेशन ऑफ x number of observations minus x bar, मतलब mean, by n. So x minus x bar square, it is, देख लो, it is distance from mean x minus x bar. मतलब 7 8 से कितना दूर है, 1 8 से कितना दूर है ये निकाल रहा है. 6 8 से कितना दूर है, 2 8 से कितना दूर है ये निकाल रहा है. x minus x bar, where x bar is mean. Are you guys following? पूजा, उज्जवल, कृष्णा, समझ में आ रहा है जितना समझाया? Yes, sir. ओके. Yes, sir. अब ये स्क्वायर करने से क्या हो रहा है? इट इज गोइंग एब्सोल्यूट, मतलब नेगेटिव का कुछ नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी हो. अगर 1 माइनस 8 करते तो ये नेगेटिव में आता, -7. बट इसका स्क्वायर ले ले तो 49 आ जाएगा सीधा. माइनस माइनस प्लस हो जाता है. आई नीड यू गाइस टू रिस्पॉन्ड, अदरवाइज मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. Yes, sir. Or put your cameras, switch on your cameras so that I can see your faces and ensure that तुम लोगों को समझ आ रहा है. So x minus x bar, so it is distance from mean, right? Variance prove हो गया फॉर्मूला से भी. So variance ऐसे कैलकुलेट होता है. Variance is something which is distance from mean. कितना है, मतलब अगर, so if variance is greater, if variance is higher, what does it mean? If the portfolio, if portfolios B is variance is higher, what does it mean? Which portfolio is riskier, portfolio 1 or portfolio 2? Portfolio 2. Right, because variance is a risk measure, and if the variance is high, it means it is a risky stock. वो उतना ही नीचे जा सकता है, वो उतना ही ऊपर जा सकता है. राइट, उतना ही अनसर्टेनिटी है उसमें. सो इसमें देख लो, इसमें 5% मिनिमम है, इसमें 2% मिनिमम है. तो ऑब्वियसली रिस्की इसमें ज्यादा है, बट इसमें रिवॉर्ड भी हाई है, इसमें रिवॉर्ड भी हाई है. तो दैट इज वाई हायर द वेरिएंस, हायर द रिस्क. नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग but square root of variance, which means variance का square root है, तो which means sigma. variance निकालो, square root करो तो standard deviation आ जाएगा. ओके. तो इसका square root sigma हो गया. अगर मैं लिख दूं यहाँ पे प्रो फॉर्मूला के टर्म से भी, x minus x bar square summation by n square root is standard deviation. Okay, so now we know what mean is, what variance is, what standard deviation is. Higher the standard deviation or variance, higher the risk of the portfolio, higher the return, it's good for us. Now coming to covariance. Covariance क्या हो गया? What is covariance? Variance we know. What is covariance अब? Any idea about covariance? या नाम से कुछ पता चल रहा है? If you can make something out of it, out of the blue.
whenever we add co before something, वो क्या हो जाता है? It is taking greater something more than one. We are co-working, दो जन साथ में काम कर रहे हैं. We are collaborating, दो जन साथ में चल रहे हैं. ठीक है, को मतलब साथ में काम करना. ओके, सो whenever we say co, so it means दो चीज का साथ में कैसा परफॉर्मेंस है वो निकालना. साथ में चल रहा है कि नहीं, वो लोग साथ में काम कर पा रहे हैं कि नहीं. So we see that thing through covariance. Now to calculate covariance, suppose we have a portfolio of two stocks A and B. Portfolio 1 पकड़ रहे हैं, उसका रिटर्न प्रोफाइल देख रहे हैं over the years for the same time period. Suppose last 6 months का रिटर्न देख रहे हैं. Okay, so let's create a table. This is stock A, stock B, and इसका returns are something like this. Let's say 5%. इसका 10 था ना. Okay, 10%, 5%. तो ये जब 15% हुआ, ये भी 8% हो गया. मतलब दोनों साथ में बढ़ रहा है. When it when 20%, it became 12%. When it becomes not 30, let's slow it down. When it falls down, when stock A falls down to 12%, it also falls down to 7%. When it falls down to 7%, it falls down to 3%, and so on. So when we see the co-movement of these two stocks, aren't they moving in line with each other? A बढ़ रहा है तो B बढ़ रहा है, A घट रहा है तो B घट रहा है. देख लो, 5% प्लस 3% प्लस 5% प्लस 4% प्लस, ये दोनों का डिफरेंस निकाले 8% माइनस, तो यहाँ भी 5% माइनस. राइट, ऐसे ही हो रहा है. Yes, sir. सो को-मूवमेंट इसका स्ट्रांग है, सो इसका कोवेरियंस हाई होगा. कोवेरियंस हाई होगा का मतलब क्या है कि दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन है, मतलब दोनों साथ में मूव करते हैं. सो अगर इफ आई कैन से इफ ए इज गोना फॉल टुमारो इन द नेक्स्ट मंथ, so I can predict somewhat कि B is also going to fall in the next month, क्योंकि past relation इन लोग का strong रहा है. Yes, sir. So covariance भी important हो जाता है when we see a portfolio. तो दो stock के बीच कैसा covariance है. If the covariance is high and we are holding only those two stocks, तो portfolio अगर गिरेगा, एक गिरेगा तो वो दूसरा भी गिरेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. But if the covariance is low, दोनों उल्टा मूव कर रहा है. सपोज ये 10% 5% है, बट अब बी का मैं चेंज कर दे रहा हूँ. अगर ये 15% हुआ तो ये 3% हुआ, ये 20% हुआ तो ये 1% हुआ, ये 12% गिरा तो ये बढ़ेगा, ये 7% हो गया, वापस बढ़ गया. मतलब यहाँ से देखना, लेट मी नॉट कंफ्यूज यू, ये 10% हो गया, ये 7% और गिरा तो ये 12% हो गया. सो नाउ यू सी इफ ए इज गोइंग अप, बी इज फॉलिंग. ये वाला देखो और ये वाला कंपेयर करो. यहाँ पे +5% है, यहाँ पे -2% हो गया. यहाँ पे +5% है, यहाँ पे -2% अगेन हो गया. यहाँ पे -8% है तो ये बढ़ गया +9%. सो दोनों उल्टा मूव कर रहे हैं. Yes, sir. Both are going in the opposite directions. So now Yes, sir. the covariance is said to be low or negative as well. Okay. कोवेरियंस नेगेटिव मतलब दोनों उल्टा जा रहे हैं. कोवेरियंस पॉजिटिव मतलब दोनों साथ में चल रहे हैं. Now, if the covariance is negative and we hold enough of, we are holding only these two stocks, तो हम लोग का पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू पोर्टफोलियो, पहले का पोर्टफोलियो जब साथ में चल रहा था. अगर ए बढ़ रहा है तो बी घट रहा है, तो मतलब एवरेज में सेम रिटर्न. बी घट रहा है तो ए बढ़ रहा है, तो एवरेज में मतलब सेम रिटर्न रहेगा, कम वो वेरिएबिलिटी होगा पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल होगा. Yes, sir. Yes, sir. है ना.
तो उसका कौन सा पोर्टफोलियो ज्यादा रिस्कियर हुआ इस केस में? कोवेरियंस हाई वाला या कोवेरियंस लो वाला? कोवेरियंस हाई वाला सर। राइट. सो whenever the covariance is low, we get a diversification benefit, which we are going to study later. This is not a part of this chapter right now, diversification benefit. आगे आएगा, बट अभी कोवेरियंस समझा रहा था तो ये भी समझा दिया कि जब भी कोवेरियंस लो होता है देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट. डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हो गया? अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करना. राइट. whenever we hear the word diversify, we say अलग अलग जगह लगाना. अलग अलग जगह लगाने का मतलब है कोवेरियंस लो होगा. आज टीवी और ब्रेड का रिटर्न्स क्या लगता है? कोवेरियंस होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? एक टीवी का कंपनी बनाता है और एक ब्रेड का कंपनी है. लो कोवेरियंस है। लो कोवेरियंस होगा क्योंकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है. टीवी का डिमांड सप्लाई से ब्रेड को कुछ फर्क नहीं पड़ा. ब्रेड सब कंज्यूम करेगा ही करेगा. टीवी यस सर। खरीदना नहीं खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है अब आज के जमाने में. Yes, sir. राइट. Yes, sir. सो दैट इज हाउ कोवेरियंस वर्क्स. कोवेरियंस का फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार फॉर फर्स्ट वाला. दूसरा वाला इज वाई माइनस वाई बार बाय एन. इज इट समवॉट सिमिलर टू वेरियंस? यस सर। या उसमें क्या था? उसमें अपने स्क्वायर कर रहे थे. राइट. वी वेर जब हम लोग खाली ये टर्म्स यूज कर रहे थे, खाली एक ही था उसमें, उसका स्क्वायर ले रहे थे. बट यहाँ पे एक दूसरा स्टॉक भी है विच इज स्टॉक वाई. सो वाई माइनस वाई बार टू रिप्रेजेंट इन आवर आवर नोटेशंस, मतलब जो हम लोग यूज किए ए माइनस ए बार इंटू बी माइनस बी बार हो जाएगा बाय एन. ओके. स्टॉक ए माइनस स्टॉक ए और स्टॉक बी का. तो दोनों कैसे मूव कर रहा है अबाउट द मीन, दोनों का मीन वो पता कर लेगा. अगर इफ ए इज इंक्रीजिंग, ए बढ़ा हुआ आया मीन से, सपोज मीन रिटर्न ऑफ ए इज 4%, दिस इज 4%. सपोज दिस इज 4%, दिस इज 2%. अब ए 4% से अगर बढ़ा हुआ आया, सपोज 6% आया, सो बी 2% से क्या बढ़ रहा है? बी भी 3% 3% 4% आ रहा है कि बी 2% से कम आ रहा है? 1%, 0% और -%. ठीक है. नेगेटिव रिटर्न से इज पॉसिबल. तो अगर इफ इट इज मूविंग टुगेदर, तो मतलब if it if it, a is greater than 4%, so this is going to be positive. If b is greater than 2%, this is going to be positive. Right. So positive कोवेरियंस आएगा सबका. Yes, sir. अगर ये नीचे जा रहा है, b is less than 2% but a is greater than 4%, so this is positive, this is negative. Right. तो Yes, sir. नेगेटिव कोवेरियंस आएगा. Hmm. यस सर। Yeah. So that is how covariance is determined कि तुम्हारा दो स्टॉक साथ में मूव कर रहे हैं कि अलग अलग मूव कर रहे हैं, और इन ऑपोजिट डायरेक्शंस और इन द सेम डायरेक्शन. Okay. So now we understand what covariance is. In VRM, यस सर अंडरस्टैंड। we don't need to learn these formulas. तुम लोग को covariance कैलकुलेट करने के लिए नहीं देगा अंडर VRM. तुम लोग को डायरेक्टली covariance दे देगा, वेरियंस दे देगा, मीन रिटर्न हो सकता है निकालने बोले, बट वेरियंस और कोवेरियंस तो निकालने नहीं बोलेगा फॉर सिंगल स्टॉक्स. इतना आई एम श्योर. पोर्टफोलियो वेरियंस और पोर्टफोलियो वेरियंस निकालने बोलेगा, विच वी आर गोना सी कैसे निकालते हैं. हाउ वी कैलकुलेट पोर्टफोलियो वेरियंस, वी आर गोना सी यूजिंग डिफरेंट वेरियंस ऑफ सिक्योरिटीज. सिक्योरिटी का वेरियंस दे देगा जो जो सिक्योरिटीज है अपने पोर्टफोलियो में, और बोलेगा पोर्टफोलियो वेरियंस निकालो. ओके. Okay. But before that, we need to understand what correlation is as well, क्योंकि correlation term भी coined है. देख लो, correlation भी है. So, अब correlation क्या होता है? It is something very similar to covariance. Covariance से ही calculate होता है, but
What is the significance of correlation? I think all this was part of class 12 also, class 12 syllabus. If you have chosen maths in class 12, so I do expect some of the answers, मतलब somewhat close answer, but ठीक है, you can try. Go ahead. If at all, give it a go. Sir, correlation is like just the relation between the two variables or That's correct, right? That's correct. It's perfect visual. So, correlation is a linear relationship. Linear जो word है वो important बात है. Linear relationship between two variables. But that is what covariance is, right? Covariance भी तो वही था. So what's the difference? Difference is when you calculate covariance ना, तो वो कितना strong relationship है, क्या magnitude का relationship है, वो नहीं बताता है covariance. Covariance बहुत ही abrupt figure देता है. Covariance माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव देखने के लिए ही काम आता है, ये वेदर द कोरिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कोवेरियंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव. बट कोवेरियंस स्टैंड अलोन कुछ बताता नहीं है कि कितना स्ट्रॉन्ग कोवेरियंस है, कितना अच्छा से साथ में जा रहे हैं. अब देयर कैन बी अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ परफेक्ट कोरिलेशन, मतलब ये 10 और 5 है तो ये 5%, मतलब 50% से बढ़ा, 10 से 15 हुआ तो 50% से बढ़ा, 5/10. यस सर. मतलब 10% का 15% हुआ उज्ज्वल, सो वो 5% का डिफरेंस 5/10 इज 50%. तो यही 5 7.5 हो गया, तो ये भी 50% से बढ़ रहा है. yes sir. तो अगर वैसा रिलेशन है कि दोनों इक्वल इक्वल परसेंटेज से बढ़ रहा है अपना, तो वी हैव अ परफेक्ट रिलेशन, मतलब दोनों इक्वल परसेंटेज से बढ़ रहा है. Yes sir. So then it is a perfect correlation. Perfect, there's a perfect correlation, but covariance वो चीज बता नहीं पाएगा तुमको. वो चीज जानने के लिए you need to calculate correlation. Correlation is a standardized measure of linear relationship between two variables or two securities. So correlation का range है, एक range है. It ranges from -1 to +1. Correlation cannot be greater than 1, cannot be less than -1. ठीक है. When correlation is 1, it is a perfect linear relationship. दोनों साथ हैंड टू हैंड मूव कर रहे हैं. आज Yes sir. आज मेरा और कृष्णा का कोरिलेशन निकालना है. हम अगर एक कदम आगे रखते हैं तो कृष्णा भी एक कदम आगे रखता है. हम अगर लेफ्ट वाला पैर आगे रख रहे हैं तो कृष्णा भी लेफ्ट वाला पैर आगे रख रहा है, और सेम डिस्टेंस इतना. सो वी हैव अ परफेक्ट कोरिलेशन. ओके. बट Yes sir. अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कृष्णा भी आगे बढ़ा है, बट मैं लेफ्ट पैर आगे बढ़ा रहा हूँ, कृष्णा राइट पैर आगे बढ़ा रहा है. We have a strong correlation. We are moving together, but we are moving together in a different way, in a different manner, right? यस सर. So we have a strong correlation. We are moving together. Okay? मतलब एक ही स्टॉक अगर पॉजिटिव वे में बढ़ रहा है, दूसरा स्टॉक नेगेटिव वे में बढ़ रहा है, तो इसका कोरिलेशन बिटवीन देम. There's a correlation, but a negative correlation. ओके. आज मैं आगे जा रहा हूँ, कृष्णा पीछे जा रहा है. ठीक है. ओके तो सर. we have a negative correlation between us. अब मैं लेफ्ट पैर आप आगे बढ़ा के पैर आगे जा रहा हूँ, कृष्णा लेफ्ट पैर पीछे बढ़ा के पीछे जा रहा है, एकदम सेम डिस्टेंस वाइज. सो इट्स अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब -1 आएगा. देन कोरिलेशन कैलकुलेट क्यों करे? कोवेरिएंस से तो हम लोग को पता चल जा रहा है ना. बट कितना स्ट्रेंथ है कोरिलेशन का, वो कैसे पता चलेगा कि कितना स्ट्रांग है रिलेशनशिप. ओके ओके ओके. रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ तो देखना पड़ेगा ना, कोई भी रिलेशनशिप हो. सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. एंड अगर एंड when correlation is 0, covariance is 0, what does it mean?
Zero, sir, means stable relation, not so good or not so bad. जीरो मीन्स इंडिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ता है. वी डोंट केयर व्हाट द अदर मैन अदर पर्सन डज और डू. मेरे को नहीं, कृष्णा को फर्क नहीं पड़ रहा है सर कहीं भी, आदर्श कहीं भी जाए, वेदर आदर्श इज गोइंग आगे, आदर्श इज गोइंग पीछे, आई विल स्टैंड देयर. मेरे को घंटा फर्क पड़ रहा है उनसे. सो वी हैव अ Yes, sir. कोरिलेशन ऑफ जीरो और कोवेरियंस ऑफ जीरो. ओके, so that is what correlation is. Now correlation in mathematical terms कैसे लिखते हैं? कोरिलेशन को यूजुअली ऐसे डिफाइन किया जाता है, पी बोला जाता है, कहीं कहीं आर भी लिखा हुआ है, तो ठीक है, नोटेशंस डजंट मैटर, विल तो वी डोंट माइंड अबाउट नोटेशंस कैसा भी हो. इसका मतलब क्या होता है, कोरिलेशन कैसे निकालते हैं? इट इज कोवेरियंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइड बाय standard deviation of A and standard deviation of B. So can I write sigma A, sigma B for your understanding? Do you understand what sigma A and sigma B means? Standard deviation of A and standard deviation of B. So this is how correlation is calculated. Covariance of AB ऊपर और नीचे standard deviation of A and standard deviation of B नीचे. इससे standardize कर देता है, within -1 to 1 के range में ले आता है. Okay, this is how correlation is calculated. सर कोवेरियंस का स्टैंडर्ड डेविएशन ये कैसे आया, मतलब कैलकुलेट हो रहा है, ये समझ नहीं आया. कैसे कैलकुलेट हो रहा है उसके लिए कृष्णा, यू विल नीड टू सी कौन का वीडियोस एंड कौन सा क्लासेस, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इनटू नंबर्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट दीज टर्म्स मीन. अभी कैसे कैलकुलेट कर रहे इज नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ. इसका कंसेप्ट क्या है वो समझ में आ रहा है कृष्णा, दैट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ फॉर मी. हाँ हाँ सर. कंसेप्ट समझ में आया तो वी कैन मूव अहेड. एंड कैसे कैलकुलेट हो रहा है विल बी taught in your cons class. Okay, so I think we know what mean is, what covariance is, what variance is, what correlation is now. Last but not the least, probability distribution. Just Pooja, you have done the classes. Do you understand what probability distribution is? Pooja, you there? Yes, sir. You know what probability distribution is? Yeah, it's a numbers of way an event can happen divided by total number of all possible outcomes. That's true. That is probability. Yeah. But probability distribution क्या है? सर अभी तक मेरा बेसिक क्लास चल रहा है. That's all. Okay, ठीक है. So I'll give a very brief introduction of probability distribution, and maybe तुम लोग को in depth एकदम समझ में भी ना आए, बट इस चैप्टर के लिए इनफ होगा जानने के लिए. ओके, सो there are suppose n number of events, 0 to 100 इवेंट्स है. कोई एक मतलब नंबर है, तंबोला ले लो. तंबोला वी हैव ऑल प्लेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. हाउजी द नंबर्स रन फ्रॉम 0 to 99, 1 to 99 होते हैं ना. हाँ, Yes, sir. या सो लेट्स अज्यूम कि 1 to 100 होता है, 99 को छोड़ के 100 तक ले लेते हैं एक बार. तो वी हैव 100 इवेंट्स इन हियर, 100 नंबर आ सकता है. सो हर एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी इज 1/100 फर्स्ट ड्रॉ में, Yes, sir. राइट. सो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इफ आई मेक अ नंबर, इफ आई मेक अ नंबर लाइन 1 to 100, 0 इग्नोर कर देते हैं.
1 to 100. So इसका probability of events is 1 by 100 for all. So if I create a graph, ये 1 to 100 है, ये 0 है और ये 1% है, मतलब 100% है, 100% है. So इसका probability distribution क्या होगा for each of the numbers? 3, 50, 99. So हर एक का probability is 1%. हर एक नंबर आने का probability for the first draw only. Yes, sir. Yes, sir. So distribution कुछ अगर यहाँ पे 1% कट रहा है इस ग्राफ में, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का, राइट? Yes, sir. बट यहाँ पे तो डिस्क्रीट नंबर्स है, सो डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी आइदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. व्हेन वी से कंटिन्यूअस, व्हाट डज इट मीन? इट इंक्लूड्स डेसिमल प्लेसेस एज वेल. तंबोला में तो 1.1, 1.2, 1.3 नहीं आ सकता है, बट स्टॉक प्राइसेस में, रिटर्न्स में तो रिटर्न्स कैन बी 9.5%, 9.75%. इट देयर कैन बी डेसिमल प्लेसेस एज वेल, राइट? Yes, sir. सो जो रिटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट नीड्स टू बी कंटिन्यूअस. Yes. कंटिन्यूअस मतलब इंक्लूडिंग द डेसिमल प्लेसेस. तो जो रिटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज रिटर्न्स कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो एक नंबर लाइन दी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, मतलब -1 मतलब दिस इज द नेगेटिव साइड, दिस इज द पॉजिटिव साइड, ठीक है? एक ग्राफ जो बनता है, ऐसे जो ग्राफ होता है, इस साइड नेगेटिव होता है, इस साइड पॉजिटिव होता है. Yes, sir. या सो व्हेन वी से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना चांसेस है कि नेगेटिव रिटर्न, अगर मैं ऐसा कोई ग्राफ बनाऊं, ऐसे ही, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफ है, ठीक है? ये मैं ऐसा ग्राफ बनाया, सो व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? कि एज वी गो नेगेटिव एंड नेगेटिव और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये सपोज एक वो था, ये 0 है, ये 1%, ये 2% एंड सो ऑन, ये ग्राफ है. सो देख लो, एकदम डीप नेगेटिव जाओ तो खाली 1% से भी कम चांस है आने का, वो नंबर रिटर्न आने का, बट 0% में इतना हाई चांसेस है. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ये सपोज 10% था, तो 10% चांस है कि 0 आएगा. ऐसे ही पॉजिटिव में अगर एंड में जाओ तो देखो इतना कम प्रोबेबिलिटी, 1 से कम प्रोबेबिलिटी है कि 1% से कम प्रोबेबिलिटी कि इतना हाई रिटर्न आएगा. सपोज ये 50% रिटर्न था, तो 1 से कम प्रोबेबिलिटी है इसका आने का. बट यही अगर 10% रिटर्न निकालना है, 10% यहाँ पे है, तो ये सपोज 6% प्रोबेबिलिटी है इसका आने का, है ना? बिकॉज इट दिस इज ग्रेटर देन दिस, सॉरी दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो इसका हायर प्रोबेबिलिटी है अराउंड 0 के आगे आने का. सो दिस इज हाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिएटेड. इट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी लाइक दिस एज वेल, कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, यहाँ पे ज्यादा नंबर्स है, नेगेटिव में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, पॉजिटिव में कम प्रोबेबिलिटी है. इट कैन बी लाइक दिस एज वेल, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव साइड में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, नेगेटिव साइड में कम प्रोबेबिलिटी है. इट डिपेंड्स कि तुम्हारा पास्ट कैसा, हाउ द पास्ट हैज बीन, and what is the distribution that you see. If I say like for the last 10 for the last 100 days of the return data, we have seen more negative returns. तो इसका मतलब कि अगर 100 days के डेटा पे probabilities निकाले, so negative returns का probability will be greater than positive returns का probability. Yes, sir.
And in this manner, we can create a probability distribution based on the number of returns that we have and calculating the number of times that return has been occurring over the period of time. ठीक है? So this is what probability distribution is. Up now there has been defined some of the distributions, like there are normal distribution, Pareto distribution, binomial distribution. ऐसे ऐसे नाम के distributions है जिसके जिसका there are certain parameter values. उस parameter values से हम लोग probabilities निकाल सकते हैं. Now for that you need to again watch the cons class. उसमें सारे distribution सब explained है, parameter values कैसे use करते हैं. I'm not gonna delve deep into that. मैं normal distribution के बारे में बताऊंगा, but probability distribution clear हुआ. Yes, sir, clear. Okay. So this is the brief introduction of bonds. अब हम लोग VRM start करेंगे. Now we are gonna start with VRM chapter 1. Let me know if you have any questions still here right now. No, sir. Okay. Mean variance framework. So now, what do you understand by mean variance framework? When we say mean variance framework, हम लोग बोल रहे हैं कि if we have mean of the portfolio and variance of our portfolio, we can make a choice कि हम लोग को कौन सा portfolio में invest करना है. We don't need any further information. There are further moments as well. Variance के बाद, so remember I mentioned variance is second moment. Skewness बोल के होता है, that is third moment. Kurtosis बोल के होता है, that is fourth moment. So वो सब भी होता है, बट हम लोग बोल रहे हैं कि वो दोनों हम लोग को नहीं चाहिए, फोर्थ फिफ्थ मोमेंट जो भी, हम लोग को फर्स्ट टू मोमेंट्स चाहिए. मीन इज द फर्स्ट मोमेंट. सो मीन फर्स्ट टू मोमेंट्स अगर दे दो मेरे को, मीन एंड वेरिएंस, सो आई कैन मेक अ वाइज चॉइस कि मेरे को कहाँ, वेयर शुड आई बी इन्वेस्टिंग माई मनी इन. So mean variance framework is sufficient for us, and this mean variance framework is also complemented by normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी दो पैरामीटर्स चाहिए होता है ओनली, विच इज अगेन मीन एंड वेरिएंस. मीन को हम लोग म्यू लिखते हैं, म्यू ऐसे यू लिखते हैं, एंड वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर. सो मीन वेरिएंस फ्रेमवर्क बोला है कि हम लोग नॉर्मल, वी हैव पिक्ड इट फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, we are complementing ourselves from normal distribution, and we only need information of the mean and the variance of the portfolio to make a choice. ठीक है, यहां तक समझ में आया? Now, Yes, sir. how to calculate the mean and variance of the portfolio? We know how to calculate the mean. We have done it already, right? यहाँ पे we are calculating mean of the portfolio, right? यही अगर 2 स्टॉक होता, 3 स्टॉक होता, तो क्या करते हैं? 3 स्टॉक से निकालते हैं मीन, क्या दिक्कत है? सपोज स्टॉक है वेट रिटर्न, वेट इनटू रिटर्न. एक काम करो, यहाँ पे सिग्मा का भी कॉलम बना लो, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस का भी, रिटर्न. Instead, let me do एक बार में डेटा लिख लेता हूँ ना. So there's stock, there's weight, there's return,
and there's variance covariance matrix. ठीक है. I'll let you know what covariance matrix is. I'm just writing the data down right now. Weight is, let's keep the weight 0.6 and 0.4 for our simplicity purposes, and let's keep the return as 10 and 5% only. अब variance covariance matrix में I'm just adding the name and then explaining you how to see the variance and covariance matrix. Okay. So 3 5 4 4 ठीक है. So एक बार खाली यहाँ फोकस करना. Let's focus here only. ठीक है. When we see variance covariance matrix, what is this 3 representing? This is sigma squared A. देख लो A and A का covariance. तो मतलब A and A का covariance is equal to variance of A. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ covariance of A and A निकालो. So if you remember the formula, summation of x minus x bar squared होता है. So A minus A bar वापस से y minus y bar होता है. So A minus A bar by n. ये covariance का formula था. Was this the formula for covariance above? Yes, sir. So isn't this summation of A minus A bar whole square by n, which is variance of A? So covariance of A, Yes, sir. variance of A ही होता है. So अगर मैं सबको covariance समझूं तो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो ये variance of A हो गया. B and A. So this is covariance of A and B, right? So this is covariance of A and B. Now again, if we see इधर A है, इधर B है, we have A here and B here. So again, this is covariance of A and B. If I am not wrong, that is why देख लो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है. ये दोनों नंबर सेम ही रहेगा हमेशा, क्योंकि both are representing the same numbers. So again, this is covariance of A and B. तो ये लास्ट वाला क्या हो गया? Please help me with it. Covariance of B. Covariance of B and B और B मतलब variance of B बोल सकते हैं इसको, है ना? So इसको सिग्मा स्क्वायर B लिख सकते हैं. Am I making sense till here? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Mu, mean. Mu equals to mean होता है. So mean रिटर्न निकालने का फॉर्मूला बुक में क्या दिया हुआ है? बुक में दिया हुआ है समेशन ऑफ WI इंटू XI. सही, which is nothing but यही चीज W into R 0.6 into 10 6%, 0.4 into 5 2%, 8% आएगा. So this is what given as mean, which is 0.6 into 10% plus 0.4 into 5%, so which is coming as 8%. Mu portfolio return ऐसे दिया हुआ है. Making sense?
Yes, sir. सर एक बार मैं देख लूं म्यू ही लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, नोटेशंस बुक से मैच करना है या सो म्यू पी है, ठीक है। सो portfolio return equals to weight into return of stock A, weight into return of stock B. Simple. Weight of B and weight of A. अगर मैं इसको और एक्सपैंड कर दूं, सो वेट ऑफ ए, ये लोग इसको म्यू आई लिया हुआ है, ठीक है। सो म्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू म्यू बी म्यू आई। If there were three stocks, so it would have been WA into mu A plus WB into mu B plus WC into mu C, right? Weights वैसे ही होता। Summation of weight should be 1, देख लो। Summation of weight should be 1। पोर्टफोलियो का तो 100% ही sir. होगा। There is a certain proportion of portfolio that is invested in each of the stocks. If I have 5 stocks equally invested है, तो हर एक पे 20% वेट्स होगा हर एक स्टॉक Yes, में। sir. सो वेट्स, समेशन ऑफ वेट शुड बी 100% फॉर अ पोर्टफोलियो। तो ये एक फीचर भी लिख देता हूँ, समेशन ऑफ WI शुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ मीन वाज सिंपल, ये हम लोग पहले भी कैलकुलेट किए थे, बट व्हाट अबाउट सिग्मा ऑफ पोर्टफोलियो, सिग्मा स्क्वायर ऑफ पोर्टफोलियो, दैट इज वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो। This is a real catch here. Now to understand this, we there's a matrix calculation that needs to be done. Matrix multiplication आता है आप लोग को? नहीं, बट ठीक है, वो उस वीडियो में समझाया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है एंड कैसे निकाला हुआ है। So that is why I suggested कि watch that video because that would be helpful in understanding matrix multiplication कैसे करता है। Matrix multiplication is not required for your syllabus, but the source of the formula that I'm going to write right now is coming from that particular matrix multiplication. That is not important at all. But to understand how the formula is coming down and portfolio variance कैसे calculate हो रहा है, to get an idea and to instill it in your mind, that is why I have taught that in previous class, and I wanted to watch you guys. I wanted you guys to watch it. That is why I suggested. Basically formula क्या है सिग्मा पी स्क्वायर निकालने के लिए? सिग्मा पी नहीं, सिग्मा पी स्क्वायर। सिग्मा, what is sigma p here? If sigma p square is variance of portfolio, Standard deviation. right? Standard deviation of portfolio. So variance of portfolio निकालने के लिए what we do is summation I, summation j into wi into wj into covariance of I and j. इसका मतलब क्या है? ऐसे बुक में दिया हुआ है, बहुत ही रद्दी लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है। लाइक आई डोंट लाइक दिस फॉर्मूला एट ऑल if I see it by naked eyes. It is very simply saying कि अगर तुम्हारे if you have two stocks in your portfolio, if you have two stocks A and B, so I के जगह A and B पुट करो, J के जगह एक एक बार A and B पुट करो, कोवेरियंस के जगह I और J की जगह A and B पुट करो उसमें। So let's say we have two stocks A and B, उसका कितना कॉम्बिनेशंस बन सकता है अपने पास, वो देख लेते हैं एक बार। Combinations of A and B. How many combinations can be made through A and B? मतलब A का, A B का, B A का, B B का, 4 कॉम्बिनेशन है।
सो ए बी बी ए बी बी, ये 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. वी हैव 4 कॉम्बिनेशंस इन हियर. लेट्स पुट देम वन बाय वन इन प्लेस ऑफ आई जे. ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये आई हो गया, ये जे हो गया. दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज आई, दिस इज जे. राइट. लेट्स पुट देम वन बाय वन, एक एक करके. सो पहला आई जे में दोनों में ए ले रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज डब्ल्यू ए इंटू कोवेरियंस ऑफ ए एंड ए. इज इट मेकिंग सेंस? Yes, sir. व्हाट विल द सेकंड कॉम्बिनेशन? पूजा. थर्ड कॉम्बिनेशन उज्जवल बोलेगा, फोर्थ कॉम्बिनेशन कृष्णा बोलेगा. गो एट पूजा, सेकंड कॉम्बिनेशन बताओ. Covariance of AB. ठीक है. कोवेरियंस ऑफ ए बी इनटू बैगन भाजी बना दीजिए. बैगन भाजी बना देंगे. टमाटर की चटनी डालना खा देना. इनटू डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी. ये दोनों को मिस कर गया. Okay. यू मिस दिस टू, राइट? ये दोनों भी तो है ना, ये नहीं है ना सर, ये दो भी है. Okay. तो ए बी, राइट. थर्ड कॉम्बिनेशन उज्जवल. WB into WA and covariance of BA. और ठीक है. फोर्थ कॉम्बिनेशन कृष्णा. कृष्णा यू देयर? Yes, sir. Fourth combination. What will the fourth combination for you? I didn't get it, sir. Sorry. Sir, I didn't get it. So समझ नहीं आया मेरे को. ठीक है. Let's start from the beginning. कहाँ से नहीं समझा आपको? So variance of portfolios. ये वाला. हाँ sir. ठीक है, कोई बात नहीं. सो बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लो. अच्छा, इसमें इस बुक में नहीं दिया हुआ है, गार्ड में दिया हुआ है. इसमें सीधा करके दिखा दिया ये लोग, ये वाला. अच्छा, ये रहा. ये कोरिलेशन से समझाया हुआ है, लाइक ये और हाई वर्जन है. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन कोवेरियंस राइट नाउ. कोरिलेशन इग्नोर कर रहे हैं, कोरिलेशन बाद में लाएंगे. सो वेरिएंस निकालने के लिए we need to ensure कि we are taking weights of both the number of stocks we have in portfolio and covariance. मतलब सपोज दो स्टॉक का पोर्टफोलियो अपने पास A एंड B, तो उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेगा. अगर दो स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो ए का कॉम्बिनेशन बन सकता है, आई जे का कॉम्बिनेशन. मतलब आई में मेरे को ए भी पुट करना है, जे में भी ए भी पुट करना है. ठीक है. पहले तो ये बात है कि दोनों में ए बी पुट करना है. दो स्टॉक है तो दोनों में हर एक स्टॉक एक एक बार आएगा. तो वो दोनों आईजे का क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है. सपोज आई ए लिया तो जे भी ए ले लिया, तो पहला वाला आ गया. ओके. नाउ सपोज आई टुक ए, जे टुक बी, तो दूसरा वाला आ गया. अब आई बी लिया, जे ए लिया, तो तीसरा वाला आ गया. दिस नाउ I is B, J is B. So we got the fourth one, right? So we got four combinations for two stocks. Now what if there were three stocks in here? वो भी देख लेते हैं. A भी लेते हैं और C लेते हैं. So I अगर A ले रहा है तो J can get A, B and C. तो तीन combinations मिल गया.
अगेन आई बी ले रहा है तो ए जे कैन टू ए बी एंड सी, अगेन 3 कॉम्बिनेशंस बी ए बी 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 सी। वैसे ही आई सी लेगा तो 3 कॉम्बिनेशंस ए बी एंड सी ए सी बी सी सी, राइट। कितने आईजे की कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। गिवन 2 स्टॉक पोर्टफोलियो इज इजियर टू अंडरस्टैंड, एंड 2 स्टॉक पोर्टफोलियो से ऊपर नहीं देगा कैलकुलेट करने के लिए, मोस्टली 3 स्टॉक पोर्टफोलियो नहीं देता है। दैट इज व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन ओनली 2 स्टॉक पोर्टफोलियो। ओके, so did you understand where the combinations are coming from? Yes, sir. Now इस combinations को हम लोग IJ की जगह पुट कर रहे हैं एक एक करके। Okay, the first one I did for AA, so WI equals to WA, WJ equals to WA, covariance of IJ equals to covariance of A and A। तो देख लो यहाँ आया। Okay, sir. Get it, sir. The fourth combination will be WB, covariance of B and B. Okay, good. Now we know that this is equals to sigma squared B, this is equals to sigma squared A, right? Variance of A and variance of B. We just proven it in here, यहाँ पे। Covariance of A is sigma squared A, right? Variance of A. तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट एंड करना चाहूँ तो कैन आई राइट डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर, फर्स्ट वाले को डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू ए, सो डब्ल्यू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। कैन आई राइट डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस फॉर द फोर्थ कॉम्पोनेंट कैन आई राइट डब्ल्यू बी स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर बी, इज द फोर्थ कॉम्पोनेंट। एंड Yes, sir. for this can I write 2 into WA into WB into covariance of A and B, because these two components are same, WA WA WB WB, covariance of AB covariance of AB, BA और AB को फर्क नहीं पड़ रहा है, covariance तो सेम होगा, right? So this is the final variance का फॉर्मूला जो निकालने देता है। बुक में क्या दिया है, पहले ये दिया हुआ है फिर ये दिया हुआ है। एंड फॉर्मूलाज मतलब ये मैं तो बोलूंगा ये वाला याद रखने का दरकार ही नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिमेम्बरिंग दिस बिकॉज वी हैव दिस फॉर्मूला इन हियर। अब अगर 2 स्टॉक पोर्टफोलियो 3 स्टॉक पोर्टफोलियो होता सो इसमें क्या ऐड होता मैं बता दे रहा हूं। If there was a 3 stock सर portfolio, आपने कोवेरियंस ए एंड बी को मर्ज कर दिया क्या 2 इंटू करके? हाँ दोनों सेम था ना तो 2 इंटू कर दिया। ओके ओके। हाँ नाउ इफ यू रिमेम्बर दिस, और अगर 3 स्टॉक होता कि सी बी है, चलो एक सी ले लेते हैं, तो इसमें खाली 2 और चीज ऐड करना पड़ता, क्या? प्लस डब्ल्यू स्क्वायर सी तो सिग्मा स्क्वायर सी, सिमिलर टू ऑल दिस। एक ही ऐड होगा और एक ऐड होगा 2 इंटू डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू सी, एक्चुअली 3 चीज ऐड होगा, ए सी प्लस 2 इंटू डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू सी टू कोवेरियंस ऑफ बी एंड सी। 3 स्टॉक इट वोंट कम, आई कैन गारंटी यू कि 3 स्टॉक पोर्टफोलियो वेरिएंस नहीं आएगा एग्जाम में। बहुत कैलकुलेशंस होता है, इतना कैलकुलेशंस नहीं देगा करने को। बट फॉर आवर इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, एक उसका खुद का वेरिएंस आएगा, जो भी स्टॉक है उसका खुद का वेरिएंस के साथ आएगा टू अंडरस्टैंड इजीली। जितना भी स्टॉक है उसका एक खुद का वेरिएंस आएगा उसका वेट के साथ, वेट का स्क्वायर के साथ, और एक दूसरों के साथ भी आएगा। देख लो सी ऐड किए तो ए और सी का एक बना, बी और सी का एक बना, 2 इंटू डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू सी, 2 इंटू डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू सी। सो वेन एवर देयर इज अ स्टॉक
द स्टॉक का वेरिएंस एंड स्टॉक का कोवेरियंस विद अदर सिक्योरिटीज, ये दोनों एडिशनल वेरिएबल्स आ जाएंगे whenever there is a 3 4 stock 5 stock portfolio, but you're gonna stick with 2 stock only, 3 stock नहीं आएगा, नहीं आते हैं। ये देख लो कितना बड़ा ये इतना बड़ा फॉर्मूला हो गया, तो इतना टाइम नहीं रहता है कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में। So this is how we calculate portfolio का variance. Now this has been explained using matrix multiplication as well, कि ये सोर्स का सोर्स क्या है, कैसे आया है, y w a square sigma square y w 2 square sigma square and this one. So I would please suggest go and watch the video. It मतलब बहुत अच्छे से explained है उसमें। Yes, If sir, you we'll watch it. yeah, if you guys would have watched the video ना, इतना explain करने का दरकार ही नहीं पड़ता, अभी बहुत easily समझ आता। बट ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। Are you guys getting it right now? क्या हो रहा है? अब numbers put करेंगे। Yes, sir, कृष्णा, अब आ any रहा है doubt? समझ। Any doubts, Krishna? Please ask away. No, sir. Okay. Now let's put the numbers in here. ऊपर we have written numbers, so let's put in here one by one. Okay. Can someone take a snapshot of these numbers and help me put the numbers in there? फोन में ले लो, किसी में भी ले लो। उज्जवल, पूजा, कोई भी, if you guys want to volunteer. Krishna. I would want you guys to help me put the numbers in there. Okay, sir. Okay. Snap taken. I'll scroll down. Yes, sir. Okay. So let me know. We are focusing here. ये वाला extra portions है. So first W squared क्या है? 0.6. 0.6 squared into sigma squared क्या है? Sigma squared है 3. 3. Okay. Plus this is 0.4. into And this is 4. this is 4 or 5. 4. 5. Five. This is 5. Pooja. Okay, it's a B Yeah. square B. Okay. Yeah. Plus 2 into 0.6 into 0.4 into 4. yeah. Okay. Now if we calculate it, so we'll get something. Do you have the calculators, Naina? Yes, sir, I have calculator. Okay. So साथ में करते हैं, उज्जवल. First ensure that you are in AOS mode. Go to second format. Second नीचे full stop होगा. Second क्लिक करने के बाद बीच में लास्ट में. ओके. डेसिमल प्लेसेस दिख रहा है? DC. Yes, sir. सो एरो अप करो. AOS आया कि CHN आ रहा है? EOS आ रहा है सर। AOS आ रहा है, ठीक है, चलो ग्रेट, यू आर ऑल सेट. सो लेट्स डू वन बाय वन. 0.6 x squared Yes. into 3 plus 0.4 x squared into 5 plus 2 into 0.6 into 0.4 into 4 equal to क्या आया?
1.8992. Mine is coming as 3.8. 1.8 would be too low as well. Okay, sir. I So think I have done any calculation mistake. मैं अभी देख लेता हूँ, मेरे से भी गलती हो सकता है. हाँ तो 3.8 ही आ रहा. Yeah, 3.8 है. So उज्जवल, there must be some mistake done by your end. ठीक है, वापस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. So variance of portfolio is coming as 3.8. So what would be sigma, the standard deviation of portfolio? What would be standard deviation of portfolio, Krishna Ujjwal, अगर 3.8 is the variance? Square root of 3.8. So 3.8 लिखो and there's a square root of 1.949. 1.949. कैलकुलेटर में देखो i by y के नीचे सेकेंड कॉलम में there's सिग्मा, ये स्क्वायर रूट का गिवन. सो 3.8 लिख के वो बटन दबाओगे अगर स्क्वायर रूट x, तो you'll get the answer. There's a calculator का सारा ऑपरेशंस का वीडियो एज वेल इन यूट्यूब एक्चुएटर्स के साइट में. Go and watch that video. That will be very helpful in getting your hands on calculator. मतलब हर एक functions कैसे यूज होते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसमें समझाया गया है. So definitely watch that video for your help. I'll be doing the calculations with you all, but वो वीडियो से और क्लैरिटी आ जाएगा. So this is how we calculate standard deviation and variance of portfolio. Now you remember I said कि ये लोग correlation देके समझाया है. So there will be many times जहाँ पे covariance नहीं correlation दिया हुआ है. So then how are you going to calculate using the same formula above? अगर correlation होता तो इसमें क्या change आता? Correlation दिया हुआ है. Correlation and standard deviation of stocks दिया हुआ है. जैसे standard deviation of stocks यहाँ पे लिया था ना आपने, standard deviation of stock ये क्या हो जाएगा? √3. This will be √5. Okay. Yes, sir. Am I making sense? Variance of A is 3, then standard deviation sigma is going to be √3. So if standard deviations are given, covariance नहीं दिया हुआ है, correlation दिया हुआ है. So इसमें क्या चेंज आएगा? What things we need to change? क्या नहीं दिया हुआ है? What is not given now? Covariance नहीं दिया हुआ है. So we need to remove covariance. But correlation दिया हुआ है. Suppose correlation दिया हुआ है. So correlation क्या बोला था मैंने? Covariance of A B by sigma A into sigma B. So isn't covariance of A and B कुछ correlation into sigma A into sigma B? ऐसे भी तो लिख सकते हैं. I'm just taking these two in here. Yes, sir. Cross multiplication. So उस फॉर्मूला में कोविडियंस की जगह अपने ये पुट कर सकते हैं, कोरिलेशन इनटू सिग्मा इनटू सिग्मा बी. Yes, sir. That is what it is done here. It has this WA square into sigma A square plus WB square into sigma B square
plus 2 into WA into WB into correlation into sigma A into sigma B. So this is nothing but covariance of A and B. Yes, sir. Right? So there will be many a times that you don't have you're not given the matrix, you're given the sigmas of A and B, and you've been given with the correlation of that portfolio. It can be 0.5, 0.8, 9.91, can be anything within -1 to 1. देन उसको यूज करके कोरिलेशन को यूज करके कोरिलेशन इंटू सिग्मा बी यूज करके अपने पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालना पड़ता है अपने को. वी नीड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो वेरिएंस अकॉर्डिंगली. सो उसमें ये दिया हुआ है बुक में. I don't think you need to follow these book का notations and all. Like मैंने लास्ट टाइम भी क्रॉस करवा दिया था कि मत देखो, ये कंफ्यूजन ही होगा. And you can follow these expanded formula. Yeah. No. Any doubts till yeah. No, sir. सर कोरिलेशन के पार्ट पे डाउट है. बोलो. उससे चेंजेस क्या आया फिर? सब तो सेम ही है ना. सब तो सेम ही है ना यहाँ पे. हाँ सब मतलब लाइक प्रीवियस वन और ये वन में तो क्या चेंजेस है फिर? आंसर भी तो सेम ही आएगा फिर. हाँ मतलब वैसे कुछ नहीं, बस कोवेरियंस अगर नहीं दिया, इफ यू डोंट हैव द कोवेरियंस गिवन इन द क्वेश्चन एंड कोरिलेशन इज गिवन, देन यू नीड टू यूज कोरिलेशन इनटू सिग्मा ए इनटू सिग्मा बी. ओके. ओके. क्योंकि बहुत टाइम होता है कोवेरियंस उतना यूज नहीं होता है, बिकॉज कोरिलेशन इज द स्टैंडर्डाइज्ड मेजर, नॉट कोवेरियंस. दैट इज व्हाई मेनी टाइम्स कोरिलेशन इज गिवन, कोवेरियंस इज नॉट. सो उस टाइम याद रखना है, वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू एज वेल. Cannot only multiply correlation, say WA WB as we did for covariance. Okay. So now we know how to calculate the mean return of the portfolio and standard deviation of the portfolio or variance of the portfolio, whatever you say. अब हम लोग को पता लगाना है, we need to know कि what is the best portfolio for us. I'll explain this efficient frontier and would close the class. Next class और pick करेंगे यहीं से. So we need to know what efficient frontier is. Mean return आया, sigma आया. There will be several combinations of mean and sigma. अगर weight change कर दे, weight A 80% कर दे, weight B 20% कर दे, mean भी change हो जाएगा, sigma भी change हो जाएगा. Right? Mean return of portfolio and sigma of portfolio, मतलब standard deviation of portfolio will be changed drastically. If we change the stocks, तभी भी change हो जाएगा. So a portfolio return, there will be many combinations of mu P and sigma P. There will be many combinations. है ना? तो which combination to choose? कैसे determine करेंगे? Which will be the best combination for us? What do we want to see? कि me as a rational customer would choose that particular portfolio. What would I need? Ujjwal, you are going to invest in a market. What will you need from your portfolio?
highest returns. returns. Okay, but for that highest return you are going to take risk. Do you invest in cryptos का return बहुत ज्यादा होता है? Yes sir, बहुत ज्यादा But होता do है. you invest in cryptos? No sir, highly Right. volatile रहता है. Highly volatile. Volatile is another word for standard deviation. Okay, Yes sir. so the risky भी बहुत ज्यादा होता है. So what do we want? Yes. Less risk, higher return. Yes sir. ठीक है. Pooja, Krishna, do you agree with Ujjwal? Yes, sir. Either low risk or high return. Either नहीं actually, and low risk and high return ये चाहिए अपने को. और Yes sir, every investor को यही चाहिए. पैसा डूबे भी ना, कमाए भी हम बम बम, बट ऐसा होता नहीं है. सो एक ग्राफ बनाते हैं. ये सिग्मा पी है, ये म्यू पी है. सो मीन रिटर्न्स एक्स वाई एक्सिस में मीन रिटर्न्स है, एक्स एक्सिस में उसका रिस्कीनेस है उसी पोर्टफोलियो का. नो, व्हाट डू वी वांट? वी वांट आवर पोर्टफोलियोज ऐसे ऐसे प्लॉट होंगे, सर्टेन कॉम्बिनेशंस बनेगा कि इतना इतना इस रिस्क में ये रिटर्न मिल रहा है. इस पॉइंट का मतलब ये हुआ है ना. इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? इतना रिस्क ले रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं तो इतना रिटर्न मिल रहा है. ये पॉइंट का मतलब हुआ इतना रिटर्न मिल रहा है अगर इतना रिस्क ले रहे हैं. राइट. ऐसे ऐसे देयर विल बी एन नंबर ऑफ पॉइंट्स. बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं. बट व्हाट डू वी वांट? वी वांट हाईएस्ट रिटर्न्स. राइट. तो अगर मैं ये 2 पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है, ये 2 पॉइंट, तो ये दोनों पोर्टफोलियो में रिस्क तो सेम है, बट हम कौन सा पोर्टफोलियो चूज करेगा? सेम रिस्क में विच पोर्टफोलियो विल आई चूज? The upper one. Upper This is one. A, this is B. I'll choose A, Yes sir, A. right? Yes, sir. So for the same level of risk, we'll choose the higher level of return wala stock. Now, let's take 2 more portfolios. These are giving same returns. C, D. Which one are we gonna choose? सेम रिटर्न दे रहा है, बट इसमें रिस्क कितना है, इसमें रिस्क कितना है? इसमें रिस्क 5% है, इसमें 3% है. C. C वाला sir. C, because for the same level of return, I would choose less riskier one. इसका मतलब क्या हुआ? For this, in this graph, we would want to move up and left, Yes sir. right? Yes, sir. So अगर मैं यहाँ पे एक if I create an umbrella here, ये स्टॉक्स है, मतलब ये सबसे टॉप मोस्ट एंड लेफ्ट मोस्ट स्टॉक्स का एक अम्ब्रेला बनाया मैंने, ठीक है. तो इसके नीचे का सारा पोर्टफोलियो बर्बाद है. वी डोंट कंसिडर दिस पोर्टफोलियो एज पोर्टफोलियो दैट वी वुड वांट टू इन्वेस्ट इन. लाइक ये एक छतरी जा रहा है, अम्ब्रेला, एक फ्रंटियर है. इसके लेफ्ट में भी कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इसके ऊपर भी कोई पोर्टफोलियो नहीं है. तो इसके नीचे का सब वी डोंट नीड ऑल दीज पोर्टफोलियोज बिकॉज इट विल आइदर गिव लोअर रिटर्न और a riskier stock for the same return, है ना. सर बट जो जैसे अम्ब्रेला वाला जैसे बन रहा है तो उसमें तो ऐसा हो रहा है ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. हाँ, बट यू सी, सपोज ये एक पॉइंट कंसिडर कर रहे अपने, ये एक पॉइंट है अम्ब्रेला में, हाँ ठीक है. यस. नाउ इस पॉइंट पे आई एम गेटिंग दिस रिटर्न विथ दिस मच रिस्क. ओके, यस सर. इसके ऊपर कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं है. ओके. There's no more combination above this or left of this. तो
अगर इधर एक स्टॉक है और ये एक स्टॉक है, ये दोनों सेम रिटर्न दे रहा है ऑलमोस्ट, हम्म, सो सेम रिटर्न अगर दे रहा है तो हम क्यों ज्यादा रिस्क ले? हम तो इस रिस्क यही रिस्क लेगा ना, हम तो इस yes, sir. कॉम्बिनेशन पे इन्वेस्ट Understood. करेगा। आई वुड वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, व्हाई वुड आई इन्वेस्ट इन दिस कॉम्बिनेशन एंड टेक हायर रिस्क? एंड अगर इधर एक पॉइंट होता, एक और पॉइंट होता अगर यहाँ पे which has the same risk, so why would I want to invest in a stock which is giving me a lower return if I can get this return at the same level of risk? Am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. Right. So this frontier is known as efficient frontier. Efficient मतलब सबसे efficient portfolios, frontier मतलब जो आगे ढांचा बनता है, frontier. Efficient frontier is the leftmost and topmost portfolios of different combinations that we get. So I'm gonna stop here for today, and let me know if you have any questions for today's class or efficient frontier. And we're gonna start with more explanations on efficient frontier and उसका variations. अभी तो सिर्फ risky portfolios था. We'll introduce a risk-free portfolio as well. But I would prefer you to please watch that video. I think part 1 का most of the class is covered, but still देखना. Part 1 का आधा, half of the portion is chapter 4 का questions, which I have sent the link to, and then half उसके बाद से start हो रहा है chapter 1. Do watch it, and part 2 भी देख लेना. ये सब उसमें भी explained है, and it will be easier for me to teach in the next class as well. और तुम लोग को better समझ में आएगा. ठीक है सर। Yes, sir. We'll watch it. सेंड दिस सर, आप ये पीडीएफ ग्रुप में भेज देना। हाँ, मैं आज भेज दे रहा हूँ. हाँ So efficient frontier हो गया. We'll introduce market portfolio, we'll introduce risk free asset. रिस्क फ्री एसेट होने से ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है एफिशिएंट फ्रंटियर, क्योंकि रिस्क फ्री का तो रिस्क ही जीरो होता है, सो वो वाई एक्सिस में लाई करता है. आई एम गोना एक्सप्लेन दीज एज वेल. फिर विल मूव टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टफ. या Okay, sir. okay, so if no questions, I'm stopping the recording, and a very happy new year. अगले साल ही मिलेंगे. So सेम टू यू सर। Same to you, sir. Thank you, sir. Happy New Okay, Year. sir. thank you.